Okay, thank you. So today I'm going to start with semiconductors. As few of you have suggested, I'm going to start today with semiconductors. So what do you mean by semiconductor? This is theory chapter. So we will discuss a few concepts first. Okay, basic obviously in the first lecture of this topic, and then we will see some theory questions based on that discussion. So what do you mean semiconductors? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? Do you have any idea? Its name itself suggested what it is. As we know that, on the basis of the conductivity, we can classify materials into three categories: conductors, insulators, and semiconductors. Conductors, insulators, and semiconductors. So, semiconductors are the materials whose conductivity lies between conductivity of conductors and that of insulators. जिनकी conductivity conductors और insulator के बीच में है, उनको क्या कहते हैं? Semiconductors. So, semiconductors have conductivity in the range of, if you see the range conductivity of semiconductors, then their range is 10 raised to 4 to 10 raised to minus 6 Siemens per meter. Okay. So this is the unit of conductivity. Okay. So this is the classification of solids on the basis of their electrical properties. When we say electrical properties, there are mainly we can classify these materials or solids on the basis of their relative values of electrical conductivity, which we denote by sigma, or resistivity. Okay, resistivity is reciprocal of conductivity. Okay, so we can broadly classify solids into three categories: metals, insulators, and semiconductors. Okay. So mainly in this chapter, we are mainly concerned with semiconductors. Some of the distinguishing features of semiconductors are uh, they have much higher resistivity than metals. सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रहती है that is much higher as compared to metals. Then you might have learned about temperature coefficient of resistivity. Okay, so the semiconductors have temperature coefficient of resistivity, that is alpha. Okay, which generally we denote it by alpha. So it is both negative and high conductors. Okay, that means the resistivity of semiconductor decreases rapidly with temperature, while that of metals increases. Semiconductor की जो resistivity है वो temperature के साथ decrease होती है. One more thing is conductors have considerable lower number density. मतलब एन जो रहते हैं number of charge carriers, okay, charge per unit volume, that is low in case of semiconductors. Okay. Now, on which factors this conductivity is depend? So, in case of semiconductor, this conductivity depends mainly on nature nature of atomic bonding, which type of bonding is there between the atoms. So it depends on nature of atomic bonding. कंडक्टिविटी किस ऊपर डिपेंड रहती है सेमीकंडक्टर की? तो कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड रहती है. सो एक है नेचर ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग, ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर क्रिस्टल का उसके ऊपर. एंड थर्ड थिंग ऑन विच दिस कंडक्टिविटी इज डिपेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस. कितने फ्री चार्जेस अवेलेबल है, बिकॉज यू नो दैट फ्री चार्जेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शंस. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस. तो इनके ऊपर ये कंडक्टिविटी डिपेंड रहती है. नाउ व्हेन वी टेक सेमीकंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जैसे अगर सेमीकंडक्टर्स देखें, देन they have 4 electrons in the outermost orbit. उनके outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन.
means valence orbit में. So there are only four electrons in the outermost orbit of this semiconductors, and therefore this elemental semiconductor conductivity, उनकी जो conductivity है वो बहुत low है. Okay? It is so too low for any practical purpose. किसी भी practical पर्पस के लिए अगर हमें यूज करना है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम उनको किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. सो व्हाट वी डू जनरली, we add some suitable impurities or some other external materials, okay, in this pure semiconductors and modify their conductivity slightly. जनरली जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है उनके कंडक्टिविटी है वो लो है. सो ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उन कंडक्टर्स में जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है उनमें कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ सके. So pure conductors, semiconductors have low conductivity. So to increase the conductivity, we add impurities. कुछ impurities मतलब external material. कुछ material उसमें add करते हैं, elements add करते हैं. And in this way, by adding some suitable impurities, we can permanently modify their conductivities. Okay, so depending on which type of impurities, which kind of impurity we are adding in the semiconductors, there are different types of semiconductor devices. हम किस प्रकार की impurities उनमें add कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड है कि सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप का है. सो there are different types of semiconductor devices based on the impurities we are adding into pure semiconductors. भी इसका फायदा क्या है सेमीकंडक्टर का? सो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जब से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ये डेवलप हुई है, इट इज पॉसिबल नाउ फॉर अस टू फैब्रिकेट एंड इंटरकनेक्ट thousands of components on a single silicon wafer. छोटी सी अब चिप जैसे देखते हैं ना मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चिप रहते हैं ना, वेरी थीन पीस. ओके, सो छोटे से प्लेस पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट और डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. इसीलिए जो भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहते थे वो अभी कैसे होने लगे, अभी छोटे छोटे साइज में मिलने लगे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, आईसीज. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर it construct or and interconnect thousands of components, okay, on a single silicon wafer. So इससे क्या फायदा हुआ कि जो साइज रिड्यूस होने लगी, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं या फिर एडवांस इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ रहे हैं, अप्लायंसेस आ रहे हैं, उनकी साइज कम होने लगी. And also there is a reduction in the cost with the improvement in reliability. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये ज्यादा रिलायबल होने लगे, परफॉर्मेंस उनकी बढ़ गई, कॉस्ट एंड साइज रिड्यूस हो गई. सो नाउ इन ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम देखेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल के अंडर होना जरूरी रहता है. वी नीड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया पावर सप्लाई को, तो कितना भी करंट उससे फ्लो होगा तो क्या हो सकता है, दैट डिवाइस कैन गेट डैमेज, वो डिवाइस डैमेज हो सकती है. सो अवॉइड दिस डैमेज देयर मस्ट बी कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उस डिवाइस से, उस सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हमारे कंट्रोल में चाहिए कि वी शुड एबल टू कंट्रोल दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस इसी के लिए यूज करते हैं टू अलाउ कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. सो important use है सेमीकंडक्टर का. Okay, with the help of semiconductor device we can control the flow of from any electronic circuit. Okay, so this is the background of semiconductors. Okay,
So now we will start with the very basic topics which we are required to understand this concept more. Okay. First topic which we will see now, that is energy bands in solids. Okay. So before we start with this, can anybody tell me what is the general structure of atom? Atom का जनरल स्ट्रक्चर कैसे रहता है? I hope you are able to listen me properly. What is the general structure of atom? Atom बोलेंगे तो कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आता है? I want answers from you. जनरली ऐसे रहता है, there is a positively charged nucleus at the center and negatively charged ions revolve around it in circular orbit. ये स्ट्रक्चर रहता है ना एटम का. तो वी नो दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और किसी भी ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स, while discussing atoms, molecules and nuclei, we have seen that electrons only revolve in permitted orbits. Okay? Permitted, each the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. बोहर्स का सेकेंड पॉस्टुलेट हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें देखा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं जिन ऑर्बिट में उनकी एंगुलर मोमेंटम ये n टाइम्स h upon 2 pi रहती है. So what we can understand from this is that electrons revolve around the nucleus only in permitted orbits. सिर्फ permitted orbits में ही, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही सकते हैं, रिवॉल्व हो सकते हैं. okay? और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहती है, okay? वो किस पे डिपेंड है? दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑर्बिट साइज. यही एंड न्यूक्लिया में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो इसका मतलब क्या, एनर्जी किस पे डिपेंड है? ऑर्बिट. एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्बिट नंबर. सो जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है उन सबकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी उनकी. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उनकी एनर्जी कितनी रहती है, सेकेंड ऑर्बिट में है तो इतनी एनर्जी कितनी रहती है. जैसे कि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था. एनीबडी रिमेम्बर्स व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? याद है किसी को क्या एक्सप्रेशन है nth ऑर्बिट? -13.4/n1. यस, -13.6 अपॉन n स्क्वायर. ये जनरल फॉर्मूला है. So energy of electron in nth orbit, बोहर ऑर्बिट. सो इससे क्या पता चलता है, अगर मेरा E1 है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. अगर E2 है तो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हर एक ऑर्बिट के लिए, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है. If they are in first orbit, they have some fixed value of energy. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. सेकेंड ऑर्बिट में है तो फिक्स्ड एनर्जी है. लेकिन ये केस कब है? दिस इज द केस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम मींस के सिंगल और सेपरेट एटम्स. दिस इज द केस ऑफ आइसोलेटेड एटम. जो भी एटम सेपरेट है, मतलब किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, सिंगल है, सेपरेट है, तो ऐसे एटम के लिए हर एक जो ऑर्बिट है उनके अनुसार, ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स, पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी उनको. जितने भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है दे हैव सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी और फिक्स्ड और डिस्क्रीट एनर्जी रहेगी उनकी. ठीक. बट ये सिचुएशन चेंज होती है व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड. अभी एक एटम है तो ठीक है, हर एक ऑर्बिट के लिए, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स्ड है. बट जब भी एटम कंबाइन होते हैं, जैसे कि लेट मी शो दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. सपोज ये एटम है एंड ये कंबाइन हुआ
बी एटम के साथ। बॉन्ड रहेगा कुछ तो। और एक सपोज तीसरा आइटम है सी आइटम है। सो अभी जब ऐसे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए, क्लोज टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे के क्लोज रहते, बिकॉज वी नो दैट वो सॉलिड में पता है ना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, कम रहता है। ओके, सो व्हेनेवर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इस केस में क्या हो जाता है, द ऑर्बिट ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्जेस ऑफ एटम्स। मतलब क्या, जैसे सपोज ए एटम्स की जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके ऊपर जो दूसरी ऑर्बिट है उनके नेबर में बाजू में जो दूसरी ऑर्बिट है, जैसे कि ये बी एटम की ऑर्बिट है या फिर यहाँ पे सी एटम की ऑर्बिट है, तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। okay? या फिर ये बी एटम और सी एटम्स में जो चार्जेस है उनका इन्फ्लुएंस ये ए एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, जैसे कि अगर सपोज मैंने सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट डी इलेक्ट्रॉन, बी एटम के ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रही हूँ, तो ये बी इलेक्ट्रॉन बी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो बी एटम का इलेक्ट्रॉन है इसके अगर विसिन में देखा, आजू बाजू में देखा, तो ए एटम है इसके बाजू में, ए एटम का ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में है। फिर जैसे ही ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के इधर आएगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन ये बी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है इट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम, ए एटम का इस इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस उसके ऊपर। मतलब क्या हुए, जब भी इलेक्ट्रो एटम्स कंबाइन होते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो हर एक आउटर ऑर्बिट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी जो भी एटम्स कंबाइन हुए उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक इलेक्ट्रॉन आजू बाजू के चार्जेस के इन्फ्लुएंस्ड में रहता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहता इलेक्ट्रॉन ना, तभी उसके आजू बाजू में जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखा मैंने तो इसके बाजू में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते आएगा, जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए यहाँ आएगा। देन जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ तक आएगा तो ए एटम के जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से उसका इन्फ्लुएंस होगा उस पे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज हर एक इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्जेस ऑफ नेबरिंग एटम, आजू बाजू के atoms के जो चार्जेस से इलेक्ट्रॉन से उनका इन्फ्लुएंस हर एक एटम पे होगा। और इसीलिए किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम लोगों ने किसी कोई भी ऑर्बिट ली तो ऑर्बिट के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स में का इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, है? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के बाजू में अलग अलग एनवायरनमेंट है, दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट चार्ज एनवायरनमेंट। डिफरेंट चार्ज एनवायरनमेंट कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज एनवायरनमेंट के इसके बाजू में ये इलेक्ट्रॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी सी ऑर्बिट है, सी एटम की सेकेंड ऑर्बिट है। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया तो इसका चार्ज एनवायरनमेंट अलग है, इसके आजू बाजू में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है। okay? या फिर ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होते हुए यहाँ आएगा तो इस वो उसके विसिनिटी में आएगा, बाजू में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के भले ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है लेकिन उनका चार्ज एनवायरनमेंट अलग अलग है, उनके आजू बाजू में अलग अलग चार्जेस से। सिंस दे हैव द डिफरेंट चार्ज एनवायरनमेंट, no two electrons of the same orbit have same energy। किसी भी ऑर्बिट के भले ही दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में हो
भले ही सपोज ये सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो दोनों भी, लेकिन दोनों का चार्ज एनवायरनमेंट अलग अलग है, दोनों के आजू बाजू में अलग अलग इलेक्ट्रॉन से, अलग अलग एटम से। और इसकी वजह से क्या होता है, देर इज नो से नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम चार्ज एनवायरनमेंट। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को, सेम ऑर्बिट के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली सेम चार्ज एनवायरनमेंट नहीं रहता, और इसीलिए उनकी एनर्जी लेवल भी अलग अलग रहती है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में चाहे दो इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। ठीक? उनमें स्लाइट डिफरेंस रहेगा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट दे हैव स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सपोज जितने भी सॉलिड्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी नहीं रहेगी। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसी की एनर्जी रहेगी -13.601 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की एनर्जी रहेगी -13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी -13.605 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया स्लाइड, ये जस्ट रैंडम नंबर्स में बोल रही हूँ टू just give you an idea that there will be a slight difference in their energy level. Though they are in the same orbit, their energy level will be different. Okay? And the difference will be not much great, but there will be a slight difference in the energy level of those electrons. Okay? तो ये हम बता कैसे सकते हैं, तो एनर्जी डायग्राम से हम बता सकते हैं। और ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है सॉलिड, जब ये हुए तो सॉलिड कब फॉर्म होते हैं, व्हेन मोर देन टू एटम्स कंबाइन। व्हेन एटम्स कंबाइन, एटम्स जब कंबाइन होते हैं दे फॉर्म सॉलिड। सो जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो एटम्स में जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उन सारे फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। ठीक? उनके एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा, स्लाइट डिफरेंस होगा। तो ये जो सारे स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल से एक ग्रुप फॉर्म करती है। ऑल द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विच फॉर्म क्लस्टर, एक ग्रुप बनाती है या फिर बैंड बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एनर्जी। तो फर्स्ट एनर्जी बैंड का मतलब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड के उस मटेरियल के फर्स्ट ऑर्बिट में है, में जितने भी एटम्स है, एटम्स में जितनी भी फर्स्ट ऑर्बिट है ये है, और फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, उन सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल जो है उनका बैंड, उनका क्लस्टर, उन एनर्जी लेवल का ग्रुप, उनको क्या कहेंगे, फर्स्ट एनर्जी बैंड। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, वॉट एवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ दैट मटेरियल, मटेरियल जिससे भी जिन भी एटम्स के साथ बना हुआ है, जितने भी एटम्स है उस मटेरियल में, हर एक एटम में ऑर्बिट्स रहते हैं ना, तो जितने भी सेकंड ऑर्बिट से उन भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। किसी की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किसी की -3.401 इलेक्ट्रॉन रहेगी, -3.399 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो ये जो सारे सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, एनर्जी का ग्रुप है, क्लस्टर है या फिर बैंड है, उनको क्या कहेंगे, सेकेंड एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड कैसे दिखाते हैं, दैट वी विल लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। So I'm sharing here with you an energy band diagram. Okay? क्या आइसोलेटेड एटम में और इन एटम्स में, सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है उनके एनर्जी बैंड में। Is this image is clear to you, clearly visible to all? यस मैम। ओके, तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट, सिंगल एटम। तो
जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर कोई भी एटम सिंगल है, सेपरेट है, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सेम रहेगी। सेकेंड ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सेम रहेगी। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ भी है, तो सेम एनर्जी है, तो एक ही लाइन से दिखाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन से। सेकेंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सबकी एनर्जी सेम रहेगी, तो वो सेकेंड एनर्जी लेवल से दिखाइए। एक सिंगल लाइन है, दिखाइए। एक सिंगल लाइन का मतलब क्या है? देयर एनर्जी लेवल इज फिक्स। The electrons which are present in first orbit, they have some fixed energy. All the electrons which are present in second energy orbit, they have energy. Okay? लेकिन यहाँ पे देखो, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है फॉर टिपिकल सॉलिड के लिए। एक मिनट, ये सॉलिड के लिए है, टिपिकल सॉलिड के लिए। तो ये देखो, फर्स्ट बैंड दिखाए है। बैंड और एक लेवल में डिफरेंस है। बैंड मतलब क्या? ये बैंड कभी बना, तो सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में, सपोज एक सॉलिड है, उस सॉलिड में दो एटम्स है। दो एटम्स है, और दो एटम्स में हर एक एटम में फर्स्ट ऑर्बिट है। हर एक एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सपोज सॉलिड में ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं है। एक की है सपोज -13.6 है, दूसरे एनर्जी लेवल है सपोज -13.601 है, सपोज तीसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.59। सपोज जी है -13.6000। तो देखो, ये एक ही एनर्जी लेवल नहीं है, तो यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है, एक क्लस्टर बना हुआ है एनर्जी लेवल्स का। और एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक की -13.601 है, 004 है, मीन्स देयर इज ओनली स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी लेवल। सो ये उन्होंने क्या बनाए? ग्रुप बनाए है, क्लस्टर बनाए एक। इसीलिए ये बैंड कैसे दिखा है? द बैंड इज शोन लाइक दिस। So they all the electrons which are present in the first orbit, they do not have exactly same energy. उनके एनर्जी में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कैसे? स्लाइड डिफरेंस है। सो इस तरह बैंड फॉर्म होते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, वैसे सेकेंड बैंड है। सेकेंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स which are present in second orbit, they have slightly different energy levels, which form a cluster, जो क्लस्टर या फिर बैंड बनाती है, सेकेंड एनर्जी बैंड। एंड सो ऑन। तो ये फर्क समझ में आ रहा है? आइसोलेटेड एटम में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है। एटम में हर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी एनर्जी सेम रहती है। और जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो सॉलिड में एटम्स एक से नजदीक है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन पे के अराउंड अलग अलग चार्ज एनवायरनमेंट रहता है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, ए है, बी है, सी है, डी एटम है। सपोज ये 4 एटम कंबाइन हो गए, तो इसका इस एटम का चार्ज एनवायरनमेंट अलग है, इसके आजू बाजू में अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके आजू बाजू में अलग अलग चार्जेस रहेंगे। सो हर एक का चार्ज एनवायरनमेंट अलग है, और इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है तो भी उनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। ठीक? उनकी एनर्जी अलग अलग रहती है। और ये जो ये ऑर्बिट की, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ की, तो हम लोग को एक क्लस्टर मिलता है, बैंड मिलता है। ठीक? और ये बैंड कैसे रहते हैं? क्लोजली स्पेस लेवल्स रहते हैं इस बैंड में। मतलब क्लोजली स्पेस्ड वर्ड यूज किए, ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी में। देयर इज वेरी स्लाइट चेंज इन देयर एनर्जी। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी लेवल which is forming a energy band. Getting?
till this point? Yes, ma'am. अभी उस दो इम्पोर्टेंट बैंड है सेमीकंडक्टर में, वो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट वैलेंस बैंड. अभी केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने पढ़ा है जो वैलेंस किसको कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट. वैलेंस ऑर्बिट किसको कहते हैं? वी नो दैट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं. वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रिकल डिपेंड रहती है. और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, जैसे कि सपोज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी सॉलिड में, तो पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, उनमें भी स्लाइट डिफरेंस रहेगा. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, द क्लस्टर फॉर्म्ड बाय द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं. क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड. द एनर्जी of energy or band of energy levels corresponds to valence electrons is called valence band. Then कंडक्टर्स लिया, कंसिडर किया मेटल के कंडक्टर्स, जैसे कोई वायर है, कॉपर वायर है या फिर कुछ. तो ये जो मेटल के कंडक्टर्स रहते हैं उनमें ये जो वैलेंस रहते हैं ये लूजली अटैच रहते हैं न्यूक्लियस के साथ. इसीलिए तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये कॉन्सेप्ट हुई है तुम लोगों. तो ये जो मेटल्स है, तो मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच रहते हैं. हमें पता है कि ये न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. बट इलेक्ट्रॉन्स जितने आउटर मोस्ट बाहर के ऑर्बिट में रहते, तो वो न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच रहते. ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे भी ये कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. फ्री मतलब क्या? दे डू नॉट लीव द मेटल सरफेस बट दे कैन मूव फ्रॉम. वो मेटल छोड़ के जा नहीं सकते, उतनी एनर्जी उनके पास नहीं रहती, लेकिन वो क्या कर सकते, एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते. देखिए, फ्रॉम एटम टू एटम रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो एटम टू एटम जा सकते हैं. जैसे कि सॉलिड फॉर्म कब होता है? जब व्हेन एटम्स कंबाइन ना, एटम्स कंबाइन होते, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच रहते हैं, और इतने लूजली अटैच रहते हैं कि दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन एनी रैंडम डायरेक्शन. सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. जो ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल से उनको कंडक्शन बैंड कहते हैं. द क्लस्टर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रो वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल का जो बैंड है, ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड. सो कंडक्शन बैंड इज नथिंग बट द एनर्जी बैंड of all the electrons, okay, which are responsible for conduction. So नेक्स्ट परमिटेड बैंड जो रहता है वैलेंस बैंड के बाद, वो है कंडक्शन बैंड. इसलिए फिर से हम एक बार ये कि ये कंडक्शन बैंड कैसे होता है एंड वेयर इट इज एक्चुअली इन द एनर्जी डायग्राम. तो ऐसे जो जैसे कि इस डायग्राम में यू कैन सी हियर, पहले तो सेकंड बैंड,
जितने भी ऑर्बिट से उसके हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनका बैंड रहेगा, एनर्जी बैंड रहेगा। देन वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी लेवल्स का एक क्लस्टर ग्रुप, जो कि हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं जिसको। और वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, okay? जो लूजली अटैच रहते हैं न्यूक्लियस से, जो कि फ्री है इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री है इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट कर सकते हैं। से इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है, क्लस्टर है, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। सो द नेक्स्ट परमिटेड एनर्जी बैंड बियॉन्ड वैलेंस बैंड इज कंडक्शन बैंड। गेटिंग दिस? ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? Yes, ma'am. एक सिंपल चीज है कि वैलेंस बैंड मतलब आउटर ऑर्बिट में जो आउटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है उसको ऑर्बिट कहते हैं, और वैलेंस ऑर्बिट में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सबके एनर्जी लेवल का ग्रुप मतलब वैलेंस बैंड। और वैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भी जो मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है लेकिन वो लूजली अटैच्ड है न्यूक्लियस से, इसीलिए वो फ्री है, एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं। ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी लेवल का जो ग्रुप है वो है कंडक्शन बैंड। और ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप रहती है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, या फिर और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस वैलेंस बैंड के टॉप में एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड के बॉटम में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहते हैं बैंड या फिर एनर्जी गैप, इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी गैप। So the separation between conduction band and valence band in energy diagram is called band gap और energy gap। तो ये गैप है, इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो फॉर गिवन मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए लार्ज गैप हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। गेटिंग दिस? बैंड गैप की कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं बैंड गैप। ओके, नाउ यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? चले मूव अहेड एंड डिस्कस फर्दर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? मितेश, ममता, सलोनी, लेट मी से हाउ मेनी? Let me see who else are there. Okay. Kaveri, I'm asking to you, are you getting this? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सर्कुलर ऑर्बिट है, अभी यहाँ पे मेरा अच्छे से सर्कल नहीं बना है मैंने। अभी देखो, एटम का स्ट्रक्चर तो पता है सबको कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। जस्ट अ मिनट है, एक मिनट में मैं आई विल जस्ट कम बैक। स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं मैम। आप दिखाई नहीं दे दिख रही रही है। है? एक मिनट। नाउ
अभी बताओ दिख रही है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी देखो यहाँ पे कि अबे एटम का स्ट्रक्चर तो पता है। में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहती है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। अभी जो इनर ऑर्बिट से मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो ये जो इनर ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के क्लोज है ना, न्यूक्लियस के नजदीक है ये ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑर्बिट सबसे क्लोज है, सेकेंड ऑर्बिट उससे थोड़ी दूर। सो सो ये जो इनर ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली अटैच रहती है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, या फिर न्यूक्लियर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स अटैच रहते हैं, तो ये ज्यादा है। क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड रहते हैं। सेकेंड ऑर्बिट, ये जो इनर ऑर्बिट से ये न्यूक्लियस से क्लोज नजदीक रहने के कारण वो टाइटली अटैच रहते हैं, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस से। सो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की उसमें ये जो ऑर्बिट्स है दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, because they are tightly bound to the nucleus. They are not contributing anything in the electrical properties of material. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती क्योंकि वो उनका कुछ रोल नहीं रहता। दे आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस। सो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इनर ऑर्बिट्स है, जितने भी इनर ऑर्बिट्स है किसी भी एटम में, वी देम एज अ कोर। इनको हम क्या कंसिडर करेंगे? कोर। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेनली किस पे डिपेंड है? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर टाइम बी, फॉर द प्रेजेंट डिस्कशन, हम लोग ऐसे अज्यूम कि ये जो कोर है, कोर मतलब इनर ऑर्बिट्स एंड न्यूक्लियस। लेट अस अज्यूम दैट फॉर दिस डिस्कशन नथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस इन दिस कोर। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है इस कोर में। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और वी कैन से वी लेट अस फोकस ऑन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओनली। सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पे फोकस करते हैं। व्हाई वी आर फोकसिंग ओनली इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड? क्योंकि जो इनर ऑर्बिट they are tightly attached with the nucleus and they are not contributing or not playing any important or significant role in the electrical properties of material. मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इनका कोई रोल नहीं रहता ज्यादा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। सो इसीलिए हम फोकस करते हैं वैलेंस ऑर्बिट पे, वैलेंस बैंड पे, कंडक्शन बैंड पे, और इनको कोर कंसिडर करते हैं। एंड लेट अस अज्यूम इंटरेस्टिंग हैपेंस इन दिस कोर। इस कोर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। सो अभी से जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी मेनली अराउंड दिस टू कंडक्शन बैंड। सो अभी देखते हैं कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के में जो डिफरेंस है जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी गैप हाउ वी कैन क्लासिफाई मटेरियल। एनर्जी गैप के अनुसार हम मटेरियल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर्स कैसे रहते हैं? गुड कंडक्टिविटी अगर कंडक्टर की देखी जाए देन क्या बोल सकते हो कंडक्टर्स के बारे में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रेंज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की, मेटल्स की? मेटल्स की जैसे देखे तो लेट अस सी हियर। सो इन केस ऑफ अ कंडक्टर जैसे कि मेटल लिए, तो ये जो बैंड गैप है मतलब क्या? द डिफरेंस और सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये जो डिफरेंस है ईजी से रिप्रेजेंट किया है। एनर्जी गैप और बैंड गैप ये बहुत स्मॉल रहता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा रहता है, स्मॉल रहता है। एंड व्हाई इट इज स्मॉल?
क्योंकि ये दोनों नजदीक रहते एक दूसरे के, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कोई कोई केस में ऐसे रहता है कि वैलेंस बैंड में भी पार्शियली फिल्ड, जैसे यहाँ पे बता रहे है, एंड कंडक्शन बैंड में भी पार्शियली एम्प्टी। हम बात करें कंडक्टर्स की, जैसे कि मेटल से, गुड कंडक्टर्स के बारे में हम बोल रहे हैं, या फिर मेटल्स के बारे में। सो इन केस ऑफ कंडक्टर गैप है, सेपरेशन है वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में, ये बहुत स्मॉल रहते हैं। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे जो शेडिंग दिखाई ना, शेडिंग इन एनर्जी बैंड डायग्राम इंडिकेट फील्ड बैंड्स। एनर्जी बैंड डायग्राम में जब भी शेडिंग दिखाते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है शेडिंग का, ये फील्ड बैंड से भरे हुए, ये ऑर्बिट्स भरी हुई है, ये बैंड भरे हुए हैं एनर्जी लेवल से। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकेंड जो डायग्राम है एनर्जी बैंड डायग्राम, उसमें दिखाया है वैलेंस बैंड। तो देखो वैलेंस बैंड आधा भरा हुआ दिखाया है। तो ये वैलेंस बैंड कैसे, दिस वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड के पार्शियली फिल्ड है। दोनों आधे आधे है, शेडेड रीजन आधा आधे दिखाया है। ये बैंड में भी आधा पार्ट है, इसमें भी आधा शेडिंग पार्ट है। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड आर पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड। तो ये केस में ये दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। अगर ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, तो उनमें जो सेपरेशन है, मतलब जिसको हम बैंड गैप कहते हैं, ये बैंड गैप क्या हो गया, 0 हो गया। या फिर दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, ईजी क्या है, बैंड गैप बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल बैंड गैप होने की वजह से क्या होता है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है, तो वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में बैंड में चले जाते हैं। वैलेंस के लिए एम्प्टी है ना, उसका मतलब क्या है, अगर वैलेंस बैंड में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन से, उनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है, जैसे कि हीट या फिर कोई दूसरी एनर्जी, रेडिएशन इंसिडेंट होती है अगर मेटल पे, तो उनको थोड़ी अगर एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं एंड दे बिकम फॉर कंडक्शन। इसका मतलब क्या है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद भी कंडक्शन बैंड में जा रहे, इसका मतलब उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल है। ठीक, इसीलिए मेटल्स क्या रहती है, मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। ठीक, इन के अगर ओवरलैप है तो सवाल ही नहीं, जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसका मतलब क्या, इस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग। इसका मतलब है वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, दे कैन कंडक्ट। ये सेकंड में भी एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप जो दिखाई है वो स्मॉल है। मतलब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी हम दे देते हैं मेटल को, तो वैलेंस बैंड में, वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे। मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, दे बिकम फ्री फॉर कंडक्शन, दे बिकम फ्री एंड अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और इसीलिए हर एक केस में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, और इसीलिए इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। तो कंडक्टिविटी कितनी रहती है इसकी, so their conductivity is mainly, the range of their conductivity is 10 raised to 2 to 10 raised to 8, just a minute, कितनी कंडक्टिविटी रहती है, सॉरी, 10 raised to 2 to 10 raised to 8 सीमेंस पर मीटर, इतनी कंडक्टिविटी रहती है। अभी इंसुलेटर की केस दिखते हैं। ये हो गया मेटालिक कंडक्टर के बारे में। उनके बीच उनका एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है या फिर 0 है, और इसीलिए देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अभी इंसुलेटर में क्या केस है, देखो इंसुलेटर में ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ये गैप बहुत ही ज्यादा है। इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो
insulator, the band gap is very high. Okay? It can be greater than 3 electron volt up, or up to इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 15 इलेक्ट्रॉन तक ये बैंड गैप हो सकता है. okay? और इसीलिए क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए. दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. या फिर रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे जो इनको थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, दिस थर्मल एनर्जी इज नॉट इनफ टू पुश दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड, इनटू कंडक्शन बैंड. रूम टेम्परेचर पे भी थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर की वजह से हीट एनर्जी जो मिलती है वो इतनी नहीं रहती कि वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंडक्शन बैंड में पुश सके. क्योंकि ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है, उनको में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सेपरेशन है. एंड दिस एनर्जी इज नॉट इनफ फॉर पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ये जो कंडक्शन बैंड है इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या फिर ये ऑलमोस्ट एम्प्टी रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है. थोड़ा भी शेडिंग नहीं है, मतलब ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी है. सो देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन. और कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करने के लिए. तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, बहुत ही जीरो हो गई. कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है अवेलेबल कंडक्शन के लिए. एंड इन देयरफॉर क्या हो जाता है, इस केस में कंडक्टिविटी कम होती है इंसुलेटर की. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल. तो कितनी रहती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स की, 10⁻⁻11 टू 10⁻⁹ सीमेंस पर मीटर. 10⁻² में है, माइनस में है, -11, 10⁻⁻19. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल. गेटिंग. तो हम लोगों ने अभी दो केसेस डिस्कस किए, एक तो मेटालिक कंडक्टर की जिसमें बैंड गैप कम है और इसीलिए रूम टेम्परेचर पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं. बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए. बट इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है. रूम टेम्परेचर पे भी उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो क्या कर सके, वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में जंप कर सके. और इसीलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता या फिर बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं. इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कंडक्शन बैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है. 10⁻⁻11 टू 10⁻⁹ सीमेंस पर मीटर इतनी रहती है. अभी बात करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में. तो जैसे कि हम किया, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज lies between conductivity of conductors and insulators. तो देखते हैं उनकी कंडक्ट एनर्जी बैंड गैप क्या है, डायग्राम क्या है. सो जस्ट सी द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर. ये जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So for some material, this band gap may be less than 3 electron volt रहती है. So at room temperature, some electrons acquire enough energy to jump to conduction band. Atoms को एनर्जी मिल जाती है, इनफ एनर्जी मिलती है ताकि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सके. तो सपोज वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन से 5 में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इनफ एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के कारण सपोज वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन में गए, देन नाउ देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन. तो इसीलिए कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स भी देयर इज सम कंडक्टिविटी. the conductivity of semiconductor is ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसुलेटर. इंसुलेटर से थोड़ी बड़ी रहती है कंडक्टिविटी. क्यों? बिकॉज एट रूम टेम्परेचर एटलीस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गेट इनफ एनर्जी टू जंप टू कंडक्शन बैंड, एंड देयरफॉर
देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए, ओके, एंड देयरफॉर दिस मटेरियल्स हैव स्मॉल कंडक्टिविटी। अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए, बट देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए कंडक्टिविटी स्मॉल है, बट जीरो भी नहीं है, देर इज सम कंडक्टिविटी के स्मॉल, दो द कंडक्टिविटी इज स्मॉल, देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन, और इसीलिए ये मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सो सेमीकंडक्टर that is lies between conductivity of conductors and insulators। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रहती है, सॉरी। So conductivity of semiconductor is greater than insulator and less than conductor, दोनों के बीच में रहती है, ओके। सो ये जो मटेरियल्स है इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सो दिस मटेरियल्स हैविंग फिल्ड वैलेंस बैंड है उनका भरा हुआ, एंड नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड नियरली एम्प्टी है, एंड दे हैव वेरी स्मॉल बैंड गैप, ओके। जनरली बैंड गैप उनकी रहती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड गैप रहती है ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन मटेरियल को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो एक्चुअल सेमीकंडक्टर डिफाइन कैसे करते? सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हैविंग फिल्ड वैलेंस बैंड, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, एंड नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। नियरली एम्प्टी क्यों बोला है? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तभी रहेंगे जब भी वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी एंड देन दे जंप टू कंडक्शन बैंड, देन देयर विल बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, otherwise this conduction band will be nearly empty, okay? And very small band gap of about 1 volt, इनको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। सो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का। So this is all about energy band, okay, and energy band diagrams for conductors, insulator, conductors we have discussed today. So इसमें किसी को कुछ डाउट है? आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा उसमें हम लोगों ने पहले देखा तो एनर्जी बैंड किस, आइसोलेटेड एटम, सिंगल एटम रहते तो उसकी हर एक ऑर्बिट में एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी लेवल से रहती है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो सबकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी एनर्जी 3.4 है। लेकिन वही सॉलिड एटम्स जब कंबाइन हो दूसरे के साथ तो उनकी हर एक ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी फिक्स नहीं रहती, देयर आर स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जी लेवल्स। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में किसी की 13.6 है, किसी की 13.601 है, किसी की 13.59 है, ओके। सो वो एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं एनर्जी लेवल का, जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। फिर हम और दो बैंड के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी लेवल का ग्रुप, क्लस्टर। और कंडक्शन बैंड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड है, जो फ्री होते हैं न्यूक्लियस से, ओके। फ्री मतलब मेटल के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेटल में ही एटम एटम घूम सकते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन कंडक्ट, विच कैन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, उनकी एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड कहते हैं। फिर हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखिए कि बैंड गैप कैसे है। एनर्जी बैंड गैप है जो मैटर की सबसे स्मॉल है, जीरो भी होती है किस टाइम, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं तब जीरो रहती है, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा है इंसुलेटर में, ओके, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप टू 15 इलेक्ट्रॉन रहती है, और सेमीकंडक्टर में दोनों के बीच में रहती है, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी गैप रह सकती है। सो दिस इज द distinguish between this material on the basis of their energy band diagram, okay, और energy band gap। फिर नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss कि कैसे सेटर्स की अभी कंडक्टिविटी कम है, बहुत ही कम है,
बिकॉज देर आर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं कंडक्शन के लिए। तो कैसे हम प्यूरिटी ऐड करके, मतलब कुछ अलग एलिमेंट उसमें ऐड करके, मटेरियल उसमें ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी परमानेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ विच इम्प्योरिटी वी आर एडिंग, कैसे सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स रहते हैं अलग अलग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एनीवन हैव एनी डाउट टिल whatever things we have discussed today, in the whatever things we have discussed today? किसी को नो कुछ मैम। है आज जो डिस्कस किए उसमें समझ में आ रहा है क्या? पहली बात तो यस मैम। Yes, ma'am. तो थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़, और इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट टुमारो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ थियरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एंड देन आई विल स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक, intrinsic and extrinsic semiconductor. So if you get time, then please go through the intrinsic and extrinsic semiconductor and n type and p type semiconductor. Okay, ताकि कल हम उसमें डिस्कस कर सके एंड वी कैन गो फॉर क्वेश्चंस. Okay, then if you don't have any query, then we can stop here for the day. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, my pleasure, ma'am.